Joseph, what have you said? What is this Google Doc? Dhritiman? Hello? Yes, sir. What is this? It's a Google form only, I believe. Google form of what? Attendance, you have shared. No, I have said a different mistake. I have to also copy paste. No, you have copied something different. Before this? No. तो अभी तक आप सो रहे हो क्या? अभी आवाज कम आ रहा है. I'm saying good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Are you ready for another dhamaka Good morning, today? sir. Good morning, sir. Good morning. Yes, sir. Morning, sir. Yeah. Guys, आज मैं दो concept पढ़ाऊंगा आपको. First is finding base. All of you please read these questions. The assignment which I have said, the assignment question, this is number 4. 4, 5, 6, 7, 8. First of all, I'll solve these questions. Now guys, to solve the questions, usually students take x, the unknown number as x, but will not take x. Will take 100% to solve the question. The concept is you have to find that unknown number, that is 100%. Unknown number को या total को मैं 100% लेके solve करूँगा. Total or base should be taken as 100 या 100%. No x is required. For example, if I'm asking this question to you, 20% of a number is 30. What is that number? Can anyone tell me? 20% of a number is 30. What is that number? Sir, 150. 150. कैसे किया 150 बताइए? Sir, multiply by 5. Multiply by 5. Fantastic. 20% अगर 30 है, number होगा उसका 5 गुना. 20% is 1 by 5. If a number is 30, the number is 5 times of that. Usually students ऐसे solve करते हैं जिसको पता नहीं है क्या. Please mute yourself, all of you. I have muted you all. जब बोलना है तो unmute करके बोलिएगा. Usually students take x to solve the question. Let a number be x. 20% of x is 30, right? 20% means 20 by 100. Then from that we'll be solving the value of x, which is not required. जो कि वो लड़की ने बताया आपको कि 20% अगर 30 है, 100% होगा तो 5 गुना ऐसे ही सॉल्व करना है. इसका शॉर्टकट है 20% अगर 30 है, 100% क्या होगा? Take the base as 100 instead of taking x, take 100 as the base or total. ये आपको समझना है. So आज हम जो पढ़ेंगे वो base finding है. Finding the base. Base मतलब जिसके ऊपर percentage calculate होता है. You must know your base, right? 20% of a number is 30, 100% is equal to 150. All of you are understanding? Please give me a big yes in the mic. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So those who have joined late, I've shared the attendance form once again. Guys, this is question number 4. 20% of number is 64. What is 25% of the number? So the concept is what percent will be equated to what actual number. So that will be getting your 100% or required percentage, right? यहाँ पर देखिए 20% 64 है, 25% क्या होगा? 64 by 25, 20 into 25 is equal to 80 is the answer. Directly you can solve. No x is required. All of you are understanding this, please respond. Sir. Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है? So No, इतना sir. calculus. Sir, ये 20% हटा के सर ये 25% क्यों कर दिया? Sorry, come again. सर ये सर 20% हटा के सर आप 25% क्यों कर दिए, समझ में नहीं आया. ये क्वेश्चन में पूछा गया है. Find 25%. 20% of a number दिया गया है, आपको पूछा गया what is 25%. ओके सर. क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो. 20% अगर है 64 तो 25% क्या होगा?
तो गाइस ऐसे ना करके हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे? देखो, this is the concept. What percent is equal to what actual number should be able to find. And this is the concept. Believe me, the questions on percentage, profit and loss, simple interest, compound interest, and DI. 1/3 of the question will be solved on this. What percent is equal to what actual number, so that will be getting your 100% or required percent. जो पूछा गया आपको. For example, 20% 64 है, 25%. आप इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड. Somebody's mic is having problem. Can anyone identify that person? Somebody's earphone is having problem. Please change the earphone. Can anyone tell who is that person? Okay. परसेंटेज बाएं तरफ कैंसिल कर देंगे, राइट. फिर 5 4 जा 5 5 जा, लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल होगा, तो राइट हैंड साइड इन द सेम लाइन भी कैंसिल हो जाएगा. कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 16 into 5 is equal to 80. So 16 Can you 16 tell 5 is once 80. again? Can you explain once again? Yes. How many of you are understanding this? First write y. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Please write down y. कैसे मैंने once cancel again, sir, किया? once again. I'll explain. Don't worry. पहले let me know how many of you are understanding this. जैसे मैंने cancellation किया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Okay. और को समझा रहा हूँ. देखिए, I'm showing how to save time without writing 64/20. ये दो लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है. आप दो लाइन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल कर सकते हैं. 5 4 जा 5 5 जा. इज इट अंडरस्टूड? प्लीज रेस्पॉन्ड. अरे समझ में आ रहा है आपको? प्लीज रेस्पॉन्ड. Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड Yes, sir. कैंसिल. सेम लाइन का लेफ्ट एंड राइट भी कैंसिल कर सकते हैं. और जो दो लाइन का ये नंबर, ये 16 into 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 80 इज द आंसर. आपको यहाँ पर 25% पूछा गया है, राइट. 25% पूछा गया, तो इसलिए हम 25% निकाल रहे हैं. 20% दिया गया है, 25% पूछा गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. समझ में नहीं आ रहा तो और बार पूछिए, मेरे को और बार बोलूंगा. सर एक क्वेश्चन है सर. यस बोलिए. सर वो जो 20% है, अगर उसकी जगह पे एक प्राइम नंबर दिया गया तो उसको कैसे प्राइम डिवाइड नंबर करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइम नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर प्राइम नंबर है, यू विल मल्टीप्लाई दिस. सपोज प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल 13 दिया या 17% या 17 yes सर. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 64 into 25/17 करेंगे. कैंसिलेशन नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है? इसको टेबल के हिसाब से करेंगे, राइट. जनरल मेथड में करेंगे वही कैलकुलेशन आएगा, शॉर्टकट में भी करेंगे वही कैलकुलेशन आएगा. Yes, sir. Yes, sir. Are you understanding what I'm saying? Yes, sir. Now, कौन सा पर्सन? I made the screen blank, don't worry. Suppose it is given easy question. 25% of a number is 3. What is 100%? Please tell me the answer जल्दी. 12. इसका 25 का 125 का how many times? 4. 4 times. 4 times. 12. Is it understood to all of you? Please respond in the mic, Yes, all sir. of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Percent में number is 9. What is 70%? Can anyone tell me the answer? जल्दी. 0 0 cancel हो गया. 3 3 7 21 is the answer. I repeat, how do I calculate? 30% अगर 9 है, 70% क्या होगा? आपको 70% पूछा जाएगा. तो परसेंटेज कैंसिल हो गया. 0 0 कैंसिल हो गया. 3 का 3 गुना 21. 3 into 7 is equal to 21. Are you understanding? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. 73% is equal to 146. What is 54%? Can anyone tell me? 73 का how many time is this? Sir, 146/73. 108. 108. How many are understanding? Please write Y in the chat box. Let me see. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Please write down Y in the chat box quickly. Thank you. यही कंसेप्ट हम पढ़ेंगे. आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कौन सा परसेंटेज कौन सा नंबर के साथ इक्वेट हम करेंगे. ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा. उसके बाद 2 सेकंड में कैलकुलेशन होगा. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. कौन सा परसेंटेज कौन सा नंबर के साथ इक्वेट करेंगे, सो दैट वी विल गेटिंग 100%. यस, टेल मी. सर प्राइम नंबर और एक बार समझो. प्राइम नंबर में कुछ नहीं है. प्राइम नंबर अगर आएगा तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा. कैंसिलेशन नहीं होगा. 17% अगर है, राइट,
ये अगर डिविजिबल नहीं है 80 है, व्हाट इज 100%? डिविजिबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8000 by 17, 17 4 68, 100 होगा। ये टेबल्स जो आप बचपन में पढ़े हैं उसी से टेबल में डिवीजन कीजिएगा। Is this understood? Can I move to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now tell me, read the question and tell me which percentage should be equated to which actual number. जल्दी बताइए किसके साथ मैं क्या इक्वेट करूं? 60% अगर बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स So 40% होगा 40% equals to 340. 40% इज इक्वल टू कितना बताइए? 340. 340. कुछ 10 पूछा गया, मतलब 100% क्या है, राइट? सो इसमें अब कैंसिल करेंगे तो 85 and 100 is 850 is the answer. Why 40%? Let me explain it once again. Boys is 60%, the girls will be 40%. 60% students are boys. तो ये जो दिया गया नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं 100 लेता हूँ, 60% बॉयज हुआ, गर्ल्स will be 40%. 40% दिया गया तो 100% क्या होगा? Is it getting clear? Please be louder and tell Yes, me sir. yes in the mic. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It all depends in the understanding of question. कितना इंग्लिश आप समझते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। Moving to the next question, guys. Very very important. याद रखो, इस तरह से क्वेश्चन बहुत Can आता है। you wait for a minute? Sorry. So can you please wait for a minute? I'm writing it down. Yeah. You can write this 40%, 340, 100%, 850. That's it. कैंसिलेशन कैसे क्या? आई टोल्ड यू 0 0 हमने कैंसिल कर दिया मैंने। 4 में कैंसिल करेंगे तो 85 into 10 is equal to 850. और कैंसिल नहीं आता 340, इसको लिखना पड़ेगा। वो जो यूनिटरी मेथड में सॉल्व होता है इसको लिखना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट हैव टू राइट दिस, इसी में कैंसिल करो, गेट द आंसर। Should I move to the next slide, guys? Look at this. The difference between 88% and 55% of a number is 1485. What is 45% of the number? So tell me 88 and 55 के बीच में डिफरेंस कितना है? जल्दी बताओ। 88 minus 33. 33% is given. What is 100%? या 45% पूछा गया है। 33% is 1485. 45% क्या है? परसेंटेज कैंसिल हो गया। 11 में 3, 11 में 135, 3 में कैंसिल करेंगे 45. 45 into 45 is the answer is 2025. Is it understood? Please respond yes or no. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. So आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने के बाद आपको 2-3 सेकंड लगेगा। दैट आई एम सेइंग, राइट? क्वेश्चन पहले पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि किसके साथ मैं क्या इक्वेट करूं, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। मैं आपको 2 पार्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ और कैलकुलेशन पार्ट भी समझा रहा हूँ। कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज गिवन 1485, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट डिफरेंस। दैट इज नथिंग बट व्हाट? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? 88% और 55% ऑफ ए नंबर। ये नंबर को मैंने 100 ले लिया। This number is 100. 100 का 88% है, 55 is 55. I'm sorry. Difference is 33%. That is given as 1485. What is 45%? So 45 into 45 is equal to 2025. Are you understanding, guys? 45 का square. There is a important method finding 45%. 45%. If I'm saying 45 square, right? That you can get easily. That is 2025. How? Number ending with 5. 55 square will always end with 25. You have to multiply 5 with the next number. 5 6 का कितना बताइए? 30. 65 square. What will the answer? Can anyone tell me? What is 6 into 7? So 42.25. 4225. 4225. What is 75 square? Tell me in the mic, jaldi. 5625. 5625. 5625. 85 square. 7225. All of you are understanding, guys? Please respond. Yes, sir. लास्ट में 25 रहता है, लास्ट में 25 रहता है और प्रीवियस जो डिजिट है 5 का स्क्वायर 25 रहता है। प्रीवियस डिजिट का नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई इनटू 10 9025. Is that clear? Yes. Yes, sir. Moving to the next question. This is also one of the, this is already done. Look at this question. This is important. This is called examination question. इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन, समझ लीजिए। That's why I've given this question earlier. All the time will be getting my question earlier. क्लास से पहले 1 घंटा में कल से क्वेश्चन दिया हूँ आपको, ये पढ़ के समझ लेना चाहिए था। मैं आपको I'm giving you 30 second time to go to the question, then I'll explain.
In an exam, a student got 25% and scored 30 marks less. Another student got 45%, scored 50 marks more. Then find the maximum mark in the exam. Tell me 25%, 45%. What are the difference? Tell me. Two students got mark difference. 20% is the difference. 30 mark less and 50 marks more. What is the mark difference to me? 80. So 100% is equal to 5 times. So that is 400 is the answer. 20% is 80. 100% is equal to 400. 20% is equal to 80. 100% is equal to 400 is the answer. How 20% the difference between 25% and 45%? The difference is 20%. How 80? 50 more, 30 less. Difference is 80. So 20% अगर 80 है तो 100% क्या होगा? After understanding, please write Y in the chat box quickly. कितने लोग को समझ में आ रहा है? Please write on Y. सर Yes, I'll explain 80 कैसे है सर, एक बार बताइए ना सर. Yeah, I'll explain once again. Those who have understood, please write Y. Let me count. कितने लोग को समझ में आ रहा है? Okay, बहुत कम लोग को समझ में आया. 60-70 Ys I have received out of 340 students. Okay. So I'm explaining once again. Please read the question once again. Once you understand the question, then you'll be able to understand the explanation. अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा. First student get 25% and he fails by 30 marks. 30 marks less than the pass mark. If I add 30, 25% plus 30, what will I get? Tell me. 25% plus 30 is what? Pass mark. 25% का 30 marks से fail हुआ. If I add 30, you'll get pass mark. Now, if I get 45% minus 50, what will I get? Tell me. Pass mark. Pass mark. So these are equal, right? 25%, 45% का difference है 20%. Right? ये 30 और इधर आ जाएगा तो plus हो जाएगा 80. 20% is 80. 100% is equal to 5 times of that. That is 400. Is it understood, guys? Please respond. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. Yes, madam, बोलिए. Sir, Yes, sir. previous slide, you can just turn it to the previous slide. Previous slide में क्या है? ये वाला. ये तो हाँ. हो गया. हाँ, ये वाला नहीं. हाँ, ये वाला. इसमें हाँ, यही वाला है. 33% कैसे आया था वो अभी तक मुझे नहीं आ रहा. Difference, madam. Difference of 88 and 55 कितना होता है? 88 minus 55. Okay. जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ. जो क्वेश्चन में दिया गया है, repeatedly I'm saying you must understand क्वेश्चन पढ़ के what percent is equal to what actual number. परसेंटेज में वो 33 है, एक्चुअल नंबर में ये है 33. अगर ये है तो 45 क्या है, 100 क्या है, आज पर द क्वेश्चन. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया था. इसमें 20% कैसा है सब बताओ माइक में. हाउ 20%? 45 minus 25. 5 minus 25. हाउ 80? 50 plus 30. एग्जाम पास मार्क्स से कम रख रहा है, एग्जाम पास मार्क्स से ज्यादा रख रहा है. डिफरेंस विल बी 80, right? So 100% is equal to 400. So moving to the next question. This is election question. At an election contested by two candidates. A candidate got 70% of the votes and won the election by a majority of 16,000 votes. Find the total number of votes. चल मैं total number of votes कर मैं 100 लेता हूँ. Winner को मिला 70%. Loser को कितना मिलेगा? जल्दी बताओ. 30%. 30%. Can you tell me what is this 16,000 all about? 40% is equal to 16,000. ये 16,000 है क्या बताओ? Is winning by a So majority of 16,000. the difference between the loser and the 40%. 40% equal to 20% of 16,000. 40%, 16,000, 100% क्या होगा? Are you understanding? Give me a big yes in the mic. yes. Yes. No, sir. Yes, sir. Yeah, no. Somebody is saying no, sir. I understand. 30% once more. Yes. Somebody. Those आप got problem. See, आप लोग अगर प्रॉब्लम हो रहा है क्लास में तो आप जो मैं वो देता हूँ क्वेश्चन पेपर देता हूँ क्लास से पहले, उसको आप दो बार पढ़ के समझ के आना है, तब जाकर आप समझ में आ जाएगा. पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर पढ़ते भी नहीं है, दोनों नहीं होगा तो फिर यू कैन नॉट एंजॉय माई क्लास. मैं चाहता हूँ कि सब क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करो, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे नहीं तो फिर नहीं बना पाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट है जो कि जिनका कंसेप्ट वीक है. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैवंट गॉन थ्रू द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली.
I explain once again. I always will explain once, twice, thrice. इतने भी बार पूछेंगे. But my sincere request to read the questions before you come to the class. एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को 70% मिलेगा, तो लूजर को 30% मिलेगा. समझ में आ रहा है? The guy was asked me, not couldn't understand. विनर को अगर 70% मिलेगा, लूजर को मिलेगा 30%. विनर is winning by a majority of 16,000. What does it mean? इसका मतलब समझाइए आप. Winner is winning by a majority of 16,000 का मतलब क्या बताइए? So difference between losers and winners. Difference between the winner and loser is 16,000. So what is the difference in percentages? Tell me. One is getting 70, other is getting 30. What is the difference in percentage? 40. So that percent is equal to 16,000. तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा गया है. टोटल नंबर वोट्स होगा 100%. क्या होगा? दैट इज 40 का कैंसिल कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 40,000. इज इट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रेस्पॉन्ड यस और नो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are called election problem, guys. Very very important for examination, like you know, for the placement exam. इसका बहुत वैरायटी आता है. मेड द स्क्रीन ब्लैंक, डोंट वरी. बहुत वैरायटी आता है क्वेश्चन. सपोज इन एन इलेक्शन कंटेस्ट 10% people did not vote. 10% people did not vote, right? The winner gets 60% of the votes polled. 60% of the votes polled and wins by a majority of 900 votes. Find the total number of votes. Total number of votes. ये एक क्वेश्चन है, right? Tell me total अगर मैं 100% लेता हूँ, 10% did not vote. So what percent voted? Tell me. 90. 90%. 90%. Is it understood? Yes, sir. Winner कितना परसेंट वोट मिल रहा है? 60. 60% किसका में निकालेंगे? 60%. 90. 90. 90 का 60% क्लियरली लिखा होगा. 60% of votes polled or the total. Please read the question carefully. So 60 का 90 का 60% कितना बता सकते हैं आप? Sir, 54%. 60% of 90 is equal to 54. किसको 54 मिला बताओ? 6 9 जा 54. हाँ, 54. किसको 54% मिला? Sir, winner को 54% मिला आपका टोटल वोट. तो लूजर को कितना मिलेगा बताओ? लूजर को कितना मिलेगा? Sir, 54 minus 36. 36. तो विनर ने लूजर को से कितना वोट ज्यादा मिल रहा है बताओ? 18% is equal to 900. 100% is equal to 5,000. So 5,000 answer. So I repeat the question. 10% people did not vote. Winner gets 60% of votes polled and is winning by a majority of 900 votes. So find the total number of votes. If I take the total number of votes as 100, 10% नहीं दिए तो 90% वोट दिया गया. विनर ने 60% of 90 मिल रहा है. 60% of 90 is 54. तो लूजर को मिलेगा 36. So 54 and 36 का डिफरेंस जो है वो है 900. 100% क्या है? How many are understanding? Please write Y in the chat box quickly. कितने लोग को समझ में आ रहा है ये concept? Please write on Y quickly. So 900 क्या है? Okay. 900 votes से जीत रहा है वो. Is winning by a majority of 900 votes. Okay, sir. मतलब विनर ने लूजर से 900 वोट ज्यादा रखा है. Thank you very much. इसमें पूछा जा सकता है what is the number of votes winner obtained by the loser. ये भी पूछा जा सकता है. नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द लूजर. सो 18% अगर है 900. लूजर को कितना परसेंट मिला बताओ? 36%. 1800. Is it understood? Yes. Yes. कि how many votes, how many people did not vote? So 10% क्या है? 18% 900. 10% क्या होगा? 500. So whatever is asked, you have to find the answer of that, because the concept what I told you is what percent is equal to what actual number. I'm sorry. What percent is equal to what actual number? You must understand. This is clear. All these 5 questions from 4 से लेकर 9 तक जो मैं असाइनमेंट दिया था, उस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है सबको? Yes or no? Yes. जल्दी सॉल्व होगा? Yes. Without taking X, will you be able to solve or not? But you need little bit of practice. Those concept is not clear. Please don't mind what I'm saying. Always जैसे मैंने आपको AB मेथड पढ़ाया, लाइन मेथड पढ़ाया, उससे तो क्वेश्चंस नहीं आएगा ना. क्वेश्चन सबको मिलाकर आएगा, राइट? तो ये भी मैं एक बढ़िया मेथड पढ़ा रहा हूँ जिसमें कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बहुत इजीली सॉल्व करा रहता हूँ मैं.
Comparison of numbers. Please read this question once again. This is question number 4, 5, 6, 7. This is question number 9, I believe. Please compare. कौन सा question देखिए ये? Assignment का कौन सा number question देखिए? Sir, 9. 9. Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. What percent is the first or the second? We'll be getting a lot of questions of this kind in the exam. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर है वो जो नहीं दिया गया है थर्ड नंबर, उसको मैं 100 लूं, राइट, उसको मैं 100 लेके आगे बढ़ूं. The unknown number is the base. थर्ड नंबर को 100 लूं. First number is 20% more. Second number is 50% more. So what will the first number? Can anyone tell me? 120. 120. What is the second number? 150. 150. क्या पूछा गया आपको? What percent is the first or the second? Means 120 upon 150 into 100 is the answer. That is 80%. 120 by upon 150, if you know the fractions, that is 34s or 35s or 4 by 5. That will be sufficient. No need to write this step. Is it understood? Please respond yes or no. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir, I didn't get the part where what percentage is the first of second. या फर्स्ट और द सेकंड, मतलब फर्स्ट 120 है, सेकंड 150 है. ये मैं ऑफ का यूसेज पढ़ाया था आपको फर्स्ट क्लास में, याद आ रहा है? व्हाट परसेंट इज 15 ऑफ 20, व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 30. दिस concept we have discussed in the first class of percentages. That means 120 upon 150, first number is this, second number is this. First of second means 120 upon 150 into 100 is the answer. That is 4 by 5, which is equal to 80%. Are you understanding, guys? Please respond yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So इसमें से देखो ये क्वेश्चन जो है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है. ये 20% मोर के बदले में लेस लिखा जा सकता है. अगर थर्ड नंबर है 100, किसको 100 लेंगे बताइए? किसको 100 लेंगे? Third number. थर्ड नंबर को 100 लेंगे. थर्ड नंबर या जो अननोन है, जो जिसके ऊपर कैलकुलेट किया गया. अगर लेस लिखा गया, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? कैन एनीवन टेल मी? 80 and व्हाट 50. इज द सेकंड नंबर? 50. So what percent is the first of the second? So cancel will be 80 upon 50 into 100. That is equal to 160%. ऐसे ही पूछा सकता है 160. ऐसे ही पूछा सकता है what percent is the first number more than the second, right? More than the second. 80 50 से कितना ज्यादा है ना? 30 ज्यादा है by 50 into 100. Whatever is the question, you need to answer that. Are you understanding or not? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Of, more than, less than, ये सब मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको. तो ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन डिस्कशन किया. 6 क्वेश्चन आर लेफ्ट. 6 क्वेश्चंस हम एबी मेथड का एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे. क्या है उसमें भी वही बेस फाइंडिंग है. Where to use AB method? Application 1. Can anyone tell me in the mic what is the application 1? Where to use AB method? When two things are multiplied to get a When two numbers are multiplied, first number increases by A%, second number increases by B%. To find the net increase in the product, will apply A plus B plus AB 100. This is the first application. What is the second application? Can anyone tell me? Successive change. Successive 100 का 10% इंक्रीज हो गया, फिर 10% इंक्रीज हो गया. 10 10 हो सकता है, 10 20 भी हो सकता है. कोई भी हो सकता है. This 21% you can get AB by AB method. 10 plus 10 is equal to 21. ये 2 बार हुआ. 3 बार के लिए हम क्या करेंगे बताओ? 3 बार के लिए we'll have to use the AB method how many times? 43. 2 times. Is it understood, guys? Yes, sir. Yes. Now, इसके अपराध में बहुत concept बाकी रह गया है पढ़ाऊंगा, like questions on population, compound interest. For particularly population question will be getting in percentage topic. For example, look at this question and tell me the answer. I'm giving you 30-second time. Please give me your answer. Send the answer to me. This question is not there. This is a very easy question. Mark the answer to me, not to everyone. Mark the answer to me privately. Let me see how many people are giving the answer. कितने जल्दी दे सकते हैं?
Okay, I've listed around 10 answers so far. Who are these guys? And thank you very much. किन लोग का सही हो रहा है, किसका गलत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं guys. Please give me the answer. Don't be afraid of the wrong answers. Who's this girl? Dreamly, आपका आंसर गलत हो गया. चेक कर लीजिए. आदित्य गर्म हो गया. रोनित आपका सही है. और इस सब आपका भी गलत हो गया. सौमिता is wrong, correct answer. सुजीता गलत हो गया. सोहन गलत हो गया. सुस्मिता is correct. रितिमान गलत हो गया. Abhishek is correct. Shreya Mishra is correct. Akash is correct. Roll number 248, please write down your name. Rename yourself. Roll number 248. मोहम्मद फैजान आलम गलत हो गया. सिमरन का भी गलत हो गया. कितना देखो कंसेप्ट, बहुत लोग गलत कर रहे हैं, कम लोग सही दे रहे हैं. आदर्श इज करेक्ट. अमोल इज करेक्ट. सार्थक का गलत हो गया. सरमन का गलत हो गया. गुपिल का गलत हो गया. अनीशा का गलत हो गया. देखो कितना आपका गलत आ रहा है आंसर. पुलकित का गलत हो गया. तो अब बताओ क्या आप करोगे फिर. मैं तो बहुत हाई स्पीड में जा रहा हूँ. आपका कंसेप्ट पहले से ही खराब है. चलो guys, stop writing. Now see, the population of town is 50,000. If it increases 10% every year, what will the population after 3 years? This question I've discussed in the last class. I thought I should repeat it because most of your concept is not clear. Okay, stop writing, please. We will solve these questions in 3 to 4 ways. Stop writing. Please concentrate on the slide. 3 to 4 ways. First method number 1. कैसे करेंगे ना, 10% सक्सेस इंक्रीज करेंगे. प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000. 10% इंक्रीज होगा. व्हाट इज 10% ऑफ 50,000? कैन एनीवन टेल मी इन द माइक क्विकली? 5,000 ऐड कर दीजिए तो 55,000 होगा. नेक्स्ट ईयर जो 10% कैलकुलेट होगा किसके ऊपर होगा बताइए? 55,000 का 10% है 5,500. ऐड कर दीजिए 60,500 हो गया. नेक्स्ट ईयर जो कैलकुलेट होगा कितना, किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? 60,500. उसका 10% है 605. ऐड कर दीजिए. दिस इज द आंसर. दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ 3 years. 66,550. दोज हैव गिवन, दैट इज द करेक्ट आंसर. 66,550. This is the successive change concept, or this is the correct answer. Are you understanding, guys? Please respond to me in a mic. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Sir, वैसे Yes, भी sir. तो 133.1% Yes, very good. I'll come to you. Please have patience. This is, I have written method number 1. This is the method number 1. I'll give all the method. I'm going to method number 2. क्योंकि आपको तीनों मेथड समझना है. ये भी समझना है, मेथड नंबर 2 भी समझना है, राइट? मेथड नंबर 2 बोल रहा है, देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस. कोई भी नंबर अगर 10% इंक्रीज हो जाता है तो नया नंबर होगा 110/100. कोई नंबर अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो नया नंबर होगा 110/100, 110/100, 110/3 बार, क्योंकि डायरेक्टली आपको 66,550 मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग द मेथड? प्लीज रेस्पॉन्ड yes or no. Yes, sir. Yes, sir. If it is increasing by different percentage, suppose 20% तो 120 होगा. If it is decreasing by 10% तो 90% होगा. So directly if you multiply, you will get the resultant number easily, right? Which method is easier, method number 1 or method number 2? Method number 2. Method 2. Method 2 is easy. Method number 1 is Can easy. you go to the previous slide once? Yeah, क्यों भाई, जल्दी आप, बहुत लेट हो रहा है क्लास के लिए प्रीवियस स्लाइड जाने से. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, डन. 110/100, 110/100, 110. Now we'll go to method number 3. Method number 3 में, as I told you, 10 plus 10 is 21. 21 plus 10 is equal to 33.1. We'll be getting the answer 33.1 easily. 33.1 of 50,000 is 16,550. उसको ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा. और 33.1 कैसा है, कोई बोल सकता है? Sir, using AB method. Using AB method. AB method. Yeah, AB method यूज किया है. 10%, 10%, 21, 21, 10, 30. अगर याद है आपको, I told in the last class to learn that 33.1%. और डायरेक्टली 33.1 निकालने से इंक्रीज निकलेगा, ऐड करने से टोटल पॉपुलेशन निकलेगा. ऑलवेज एबी मेथड में टोटल इंक्रीज होता है. इंक्रीज होगा इतना तो होगा कितना ना, ऐड कर देंगे. और डायरेक्टली 133.1 भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली. 5 into 1331 मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आ जाएगा. नाउ टेल मी व्हिच मेथड इज इजियर. Method Third 3. method. Heavy method. AB method is easy. Okay, I am not forcing you to apply the AB method or method number 2 or method number 1. It all depends on you. कितना कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, सही कर. जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, Sir, very, yeah, is very very important for all. Sorry.
मेथड 1 मेथड नंबर 1 दिखाऊंगा मैं, और एक बार टाइम तो चला जाएगा ऐसे। मेथड नंबर 1 को 2-3 बार समझाया आपको कि मेथड नंबर 1 है 50,000 का 10%, फिर ऐड करेंगे, फिर इसका 10% ऐड करेंगे, 10% निकाल के ऐड करेंगे, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? यस सर यस। और 110 करेंगे और एबी मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ आई एम गिविंग ए क्वेश्चन, नाउ ऑल ऑफ यू नीड टू आंसर मी privately to me, not to everyone. Send answer private. This question is there in your question paper, what I've mentioned. Mark the answer to me, not to everyone. देखते हैं कौन है तुम्हारा क्लास में जिसका कंसेप्ट क्लियर है। This is there in a question paper. क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़िए, आंसर कीजिए। Ten seconds more I can give you. बहुत लोग 87,846 लिख रहे हैं, जो कि गलत है। The correct answer is given by पुलकित, दिसारी, सौमित्र, सरमन रॉय, नेक्स्ट इज अभिषेक। यही लोग ही सही आंसर दिए और बाकी जितने भी 20-30 लोग आंसर दिए सब गलत है। अमन has given correct answer. 87,846 नहीं होगा। This is the problem, right? रौनक भी सही आंसर दे रहा है अभी। प्लीज स्टॉप राइटिंग। अब बाकी सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं। प्लीज विश्वजीत साहू इज ऑल्सो करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज 60,000। आई रिपीट, द करेक्ट आंसर इज 60,000। देखो गाइज, आपको क्या पूछा गया है बताओ। व्हाट इज द पॉपुलेशन 2 years एगो ना 2 years आफ्टर 2 years क्या पूछा गया है? 2 years ago. 2 years एगो पूछा गया है। 2 years एगो का जो पॉपुलेशन होता है वो बेस होता है, वहीं से कैलकुलेशन होता है, नॉट माइनस नहीं हो जाएगा। सुनिए ठीक तरह से। मेथड नंबर 1 जो है और अप्लाई करेंगे, बेस जो है 2 साल का पहले का पॉपुलेशन वो नहीं दिया गया, उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर 10%। तो आज दिस इज नॉट गिवन, so method number 1 is not useful to solve this question, right? Because the base is not given. The base, try to understand what I'm saying. The base is the population 2 years ago. वहां से कैलकुलेट होता है 10%। ऐसा नहीं कि आज से मैं 10% माइनस कर दूं। बहुत लोग 72,600 का 121% निकाल दिया। अरे भाई, हम आगे नहीं जा रहे, हमको पीछे पूछा गया। अभी का पॉपुलेशन दिया गया, पीछे का पॉपुलेशन पूछा गया, आगे नहीं जाएगा। क्वेश्चन तो पढ़ो। भूत की तरह आंसर कैसे दे रहे हो? आप जानते हो भूत का मूवी देखते हो, व्हाइट कलर का बाल रख के, साड़ी पहन के, जैसे साए के चला जाता है घर के अंदर, वैसे ही आप साए के सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के देखो कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया एग्जैक्टली। So guys, try to understand method number 1 is not useful to solve the question where the base is asked. Base is the population before 2 years, right? Now, method number 2 you will use. Method number 2 कैसे यूज करेंगे? Suppose the population before 2 years is X, उसका 110 करके हमको 72,600 मिल रहा है। What is the value of X? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो you'll be getting 60,000. So that's why method number 2 is important. Method number 3 में भी मैं जाऊंगा। हाँ पेशेंस, how many understanding? Please respond in the mic, yes or no. कितने लोग समझ आ रहा है? Yes, sir. Please write down Y in the chat box quickly. Those who have understood, let me see कितने Y's मेरे को मिल रहा है, कितने Y's कितने लोग को समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। याद रखो, हमको बेस से निकालना है, राइट? बहुत लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं और एक बार शॉर्ट कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। कैसे? सुनिए, जब बेस में जाना है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेनिंग। बहुत जो बुक में बहुत फॉर्मूला दिया गया है, आई एम नॉट टेलिंग यू द फॉर्मूला, द कंसेप्ट। जब बेस में जाना है तब आपको 100/110 करना है। देखिए 100 ऊपर रहेगा, सो नो एक्स इज रिक्वायर्ड। 100/110 करने से आपको बेस मिल जाएगा। 72,600 इंटू 100/110, 100/110। यहाँ पर 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज होता है तो 90 करते हैं, 20% की तो 120। ये परसेंटेज चेंज को डिपेंड करता है। इसमें 10% एवरी ईयर है, राइट? ऊपर 100 रखेंगे जब आप बेस में जा रहे हो तो। Is it understood? Please respond yes or no. Method number 2 is very important. Yes, sir. Yes, sir. So
मेथड नंबर 2, टेक द स्क्रीनशॉट। इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जब बेस में जाना है 100 ऊपर रहेगा, बेस से आगे जाना है 100 नीचे रहेगा, राइट। दैट्स व्हाई मेरा जो टॉपिक है आज का परसेंटेज का, फाइंडिंग द बेस। आप देखेंगे वो जो असाइनमेंट भेजा उसका नाम दिया गया फाइंडिंग द बेस, राइट। मेथड नंबर 3 पे भी अप्लाई कर पाऊंगा। व्हाट इज 10 plus 10? टेल मी व्हाट इज 10 plus 10? 10 plus 10 21%. 1% इंक्रीज होके कितना बनेगा? 121 दिया गया है, 100 क्या है? दिस इज ऑल्सो मेथड नंबर 3। इसका 6 times 600 into 100 is 60,000। तो 121 दिया गया, 100 क्या है? इज इट गेटिंग अंडरस्टूड? यस सर। 121% इंक्रीज होके 100 है, 2 years एगो का पॉपुलेशन, राइट। तो 72,600 into 100 by 121 करेंगे। 121 कैसे? 121% is given, what is 100%? आप ऐसे भी कर सकते हैं। Should I move to the next question and slide? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये सेम क्वेश्चन है। देखिए 5% इंक्रीज हो रहा है एवरी 10 years। तो 20 साल में कितना बार चेंज होगा बताओ? 10 years में 5%, 20 साल में कितना बार 5% चेंज होगा? 2 बार। 2 बार होगा। आपको बेस में जाना है या आगे जाना है? बोलो। बेस में। 2,20,000 into 100 by 100, 500 by 100 करके आंसर 2 लाख मिलेगा। This is the method number 2 I have applied. And is this question given in the assignment? Please respond. Which question it is? Yes. So इसको solve करना है। This is question number 2, sir. Okay, fine. Question number 2. Is it understood, guys? Please respond. Yes or no? Yes, sir. बेस में जाना तो 100, और नहीं तो 5 plus 5 कितना बताया था अभी मेथड में? What is 5 plus 5? 10.25। तो 100 by 100 10.2 ऐसे भी आप कर सकते हैं, राइट। 100 is given, what is 100%? ऐसे भी आप कर सकते हैं। बट आप देखिए 100 10.25 में ये कैंसिल करना डायरेक्टली 2 में कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा कैंसिलेशन का पता होना चाहिए आपको। So these concepts what I am teaching you not only for placement, this will help you to solve questions for competitive exam. If you are appearing GATE exam, right, then it will help you. If you are appearing any competitive exam after your BTech, this will help you, right? So moving to another type of question, वो भी वही change of base पता करना है। direct and remaining question, इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको। आज का जो पूरा क्लास है मैं हमको 100 में जाएंगे द बेस अब, राइट। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं 100 में ही जा रहा हूँ। तो यू मस्ट नो योर बेस। ये 100 में जा रहा हूँ, राइट। सारे क्वेश्चन में 100 आपको पता करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन से अलग तरह का क्वेश्चन है, ये भी मेथड में नहीं है। ऑल ऑफ यू प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। A man's 20% of his income on house rent, 40% on food, 20% on miscellaneous, saves 6,000. What is income? ये 20%, 40%, 25% किसके ऊपर है बताओ? किसके ऊपर है? 100% total 100 income. के ऊपर हो, इनकम के ऊपर हो। So this is called a direct question. सबको ऐड कर दीजिए। खर्चा कितना हो गया? 20%, 40%, 25%, 85%. 85%. अभी बचेगा कितना बताओ? 15% 15% equals सेव 6,000. करेगा। 15% 6,000, what is 100%? Is equal to 40,000. 40,000. Is it understood? Please respond. Yes, sir. Yes. This is an easy question. Here also we are finding the same concept. What percent is equal to what actual number? What percent is equal to what actual number? ये आपको जानना चाहिए। सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहा है। But if I look at the next question, इसमें क्या डिफरेंस है बताओ? एक बार प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन कैसे दिखाऊं? आप क्यों व्हाट्सएप नहीं, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं? हो गया। Okay. Now tell me the difference between this question and the previous question. यहाँ इनकम पूछ रहा है। Sir, 25% of the remaining miscellaneous, sir. यहाँ वहाँ पर भी बच इनकम गया उसका 25%, sir. Remaining. Yeah. Remaining है। 40% remaining or 25%? Yeah, 40% of the remaining on food, 25% of the remaining on miscellaneous, ये सब पूछ रहा है। Yes, sir. Is it clear?
सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं जनरल में तो बता रहा हूँ. सपोज मेरा इनकम 100 है, मैं 20% खर्चा कर दिया हाउस रेंट पर, कितना बचेगा बताओ? रिमेनिंग कितना होगा? 80%. नेक्स्ट जो 40% मैं खर्चा करूंगा, किसके ऊपर खर्चा करूंगा? 80%. 80% को 80 का 40% कितना बताओ? 32, राइट? 32. सो रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ? 80 था, 32 खर्चा हो गया, कितना बचेगा? 48. 48 का 25% कितना बताओ जल्दी? 25 1/4 of 48. 12 खर्चा हो गया, बचेगा कितना? 36. वो 36% 7,200 है. 100% क्या? दैट इज इक्वल टू 20,000. ये एक मेथड है, मैं आपको अभी शॉर्टकट बताऊंगा, जो भी पहले डिस्कशन किया था मैंने आपको. कितने लोग को समझ में आ रहा है? प्लीज राइट डाउन वाई इन द चैट बॉक्स क्विकली. हाउ मेनी आर ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग? क्विकली राइट डाउन वाई. या, थैंक यू वेरी मच. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट? इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा आपको. कैसे शॉर्टकट है, जो पहले ऑलरेडी प्रीवियसली हम सॉल्व कर चुके हैं. गाइस टेल मी, अगर टोटल इनकम में बेस लेता हूँ, 20% खर्चा हो गया, 40% रिमेनिंग खर्चा हो गया, 20% रिमेनिंग खर्चा हो गया. ये जो 7,200 दिया गया है, हमको इनकम पूछा गया है. इज इनकम द बेस और नॉट? Yes, sir. इनकम बेस Yes, है, sir. बताइए. जब बेस में जाना है तो मैं क्या बताया था? 100 कहाँ पर रखना है बोलो? गेटिंग द बेस मतलब 100 कहाँ रखना है? Numerator. रखना है. Numerator. 100 by 7,200 into 100 by 80, 100 by 60, 100 by 75. Why am I writing 80? Can anyone tell me why I'm writing 80? 20% spent, remaining is 80. Yes, sir. 40% of the remaining spent, remaining is 60. इसको आप बहुत जगह बुक में आपको फॉर्मूला की तरह मिलेगा, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ. When you are trying to find the base, you write 100. जितना चला गया, 20% चला गया, मतलब सपोज 20% लॉस हो गया, तो बचेगा 80%. फिर उसका 40% लॉस हो गया, बचेगा 60%. 20% लॉस हो गया तो बचेगा 70. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली इन वन लाइन, राइट? इसको कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा आपको 20,000. 25. या, दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? प्लीज राइट डाउन वाई इन द चैट बॉक्स. ये मेथड किसको समझ में आ रहा है? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप इफ इट इज पॉसिबल. और जिसका कोई डाउट है मेरे को बताइए. बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप मिस नहीं कर सकते. ये एग्जाम में सर एक बार रिपीट कीजिएगा. डेफिनेटली रिपीट करूंगा मैं. 20% खर्चा हो गया तो रहेगा कितना बताओ? 80%, राइट? फिर उसका 40% खर्चा हो गया तो रहेगा कितना? 60%. सो और मैं बता देता हूँ, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आज. दिस इज इम्पोर्टेंट. अगर आप इनकम को एक्स लेते जनरल मेथड में, 20% चला गया तो कितना परसेंट रहेगा बताओ? 20% चला गया तो रहेगा 80%. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. जो रहा 40% चला गया तो रहेगा 60%. उसका फिर 25% चला गया तो रहेगा कितना ना? 75%. जितना रहेगा उसको सेव कर रहा है, राइट? यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स. देखो आपको और बार कैलकुलेशन लिखना पड़ता, जो कि नहीं चाहिए. डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि इतना ना करके 7,200 इंटू 100 by 80 इंटू 100 by 60 इंटू 100 by 75, ऐसे भी आप कर सकते हैं. डायरेक्टली मिलेगा. Is it easier than the previous method? Guys, please respond. Yes, sir. Yes, sir. Guys, you won't believe this also can be solved by AB method. अगर आप AB method समझते हैं, चला जाता है मतलब स्पेंड हो जाता है, मतलब माइनस हो गया, -20 -40 +8 -60 +8 हो गया -52. अगर आप इस तरह का मेथड जानते हैं, -52 -25, राइट? प्लस ये हो जाएगा 13. कितना हो गया? 5 2 7 77 + 13 कितना होगा बोलो? 64%. नेट लॉस 64% हो गया. तो रिमेनिंग रहा कितना? 36%. 36% इक्वल 7,200. तो 100% क्या? This also is another method you can solve. I'm not saying you follow this method or the previous method or this method. It all depends on you. It all depends on your conceptual clarity. अब किसमें कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कौन? So everything is same. सर वहाँ पे 8 कैसे है बोलिए? कौन सा बोला? -20 -40 +8. कौन सा बोलो? बार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. सर -20 -40 +8 किया ना आपने? हाँ, ये भी मेथड यार, बार बार बता रहा हूँ. माइनस है, माइनस प्लस है भी मेथड. AB by 100.
40 into 20 by Okay, that. sir. Did I explain how to get the AB method in 1 second in your mind or not last time? Minus 20 minus 40 कितना होगा बताओ mind में? Minus 20 minus 40. 60. नहीं यार, minus 60 नहीं, minus 60 plus 8 होगा ना, 20 into 40 by 100. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो जो मैंने बताया आपको 100 by 36 करके आप सॉल्व कर 36%. कहाँ से आया 36? By applying AB method, right? AB method. By applying AB method also you can solve this question. So questions on Venn diagram, right? अभी important है Venn diagram क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिया गया आपको. ये क्वेश्चन था, आप देखिए कि दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट? कौन सा क्वेश्चन है बताया? 10 sir. 10 और 11 क्या? 10 sir. This is a set A, this is set B, this is A union B. याद है आपको? This is A intersection B. A union B is equal to A plus B minus A intersection B. ये हम कंसेप्ट पढ़े थे. अगर परसेंट स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स 45% होगा, परसेंट स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश जो है 36% है, माइनस इंटरसेक्शन भी. देखो ये और ये ऐड करता हूं तो ये 2 बार रहता है, इंटरसेक्शन को माइनस करें, कितना परसेंट माइनस हो गया? 19%, राइट? वहां से आपको मिल जाएगा 6 5 11 1 3 4 4 8 माइनस 19. सो 62% स्टूडेंट पास्ड आइदर इन इंग्लिश और मैथ्स. पूछा गया हु फेल्ड इन बोथ. सो टोटल अगर ये स्टूडेंट है पास किए 62% और फेल होगा 38%. रिमेनिंग. दिस इज द कंसेप्ट टू अप्लाई कंसेप्ट यूजिंग वेन डायग्राम. वेन डायग्राम कंसेप्ट ये आप लिख लीजिए और टेक द स्क्रीनशॉट. Is it written, guys? Please respond. Yes sir. Yes, sir. इजी है, ये एग्जाम में आता है इसलिए मैंने आपको दिया ये. दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. जो क्वेश्चंस पढ़ाया नहीं गया वही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. राइट? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. ओके. और एक इस तरह क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 3 by 5 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 3 by 5. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू द मिस्टेक? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्लेसमेंट एग्जाम में आता है, कंप्यूटर एग्जाम में भी आता है. इस तरह क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अ नंबर मल्टीप्लाइज अ नंबर x, जो x जो नंबर है वो x को एक अपना एक नंबर ले लीजिए. डोंट टेक x टू सॉल्व क्वेश्चन. लेट अस टेक द नंबर बी 15. why 15? कैन एनीवन टेल मी why 15? 15 क्यों लिया मैंने? Divisible by both 5 and 3. 5 और 3 में डिविजिबल होगा. 15 को अगर हम 5 by 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 by 3 क्यों? Because this is correct. Instead of dividing by 3 by 5, तो अगर 3 by x divide by 3 by 5 करेंगे, the same as the multiplication by 5 by 3, right? So this is the correct number. 15 को 5 by 3 में मल्टीप्लाई करके 25 होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर दिया? मैं उसको 3 by 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 हो गया. 25 होना था, 9 हो गया. What is the error percentage? Error is 16, right? 16 by 25 into 100 is equal to 64%. This is an important question. Take the screenshot of this. This question often comes in the exam. चलिए और एक बार समझाएंगे. Definitely और बार समझाएंगे. कितने लोग को समझ में आ रहा है? Please write why. कुछ ही वो वाला. कितने लोग को समझ में आ रहा है? Please write down why in the chat box quickly. चलो, thank you very much. 5 by 3. Yes. अब समझाऊंगा मैं. और इसका स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए. तो नेक्स्ट टाइम जब आप अटेंड करने आ रहे हो, जो जितना क्वेश्चंस मैं देता हूँ वो पहले दे देता हूँ, उसको पढ़ के आइए, मैं इसका शॉर्टकट डिस्कशन करता हूँ. दैट इज व्हाई यू कैंट बिलीव मेरे को कितना कष्ट हो रहा है. एक एक क्लास के लिए एक एक आसन बनाना, उसके लिए फ्रेम करना, मैं क्या पढ़ाऊंगा उसी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर होना चाहिए. आज मैं फाइंडिंग द बेस पढ़ा रहा हूँ तो उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा, राइट? क्या क्या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, कोई एग्जाम में आता है, ये सब सोच के मैं क्लास देता हूँ. हर एक क्लास में 1 और 2 क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ाता हूँ एग्जाम का. So you should be a little bit careful and sincere, right? I'm saying read the question for coming to the class means you have to read, or else
you'll have the problem. यहाँ पर समझ में आ रहा है, फिर बाद में नहीं समझ में आएगा. So I would request all of you again, you need to solve these 12 questions after this class. अगर आप कवर की क्लास है तो खत्म कीजिए, आज ही सॉल्व कीजिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट ले लीजिए, घर में अगर प्रिंटर है तो सॉल्व कीजिए, एंड मार्क द आंसर्स, आंसर की बनाइए, सब तो रखिए इसको. आप जितना भी मैं असाइनमेंट दूंगा, अगर आप क्वेश्चन उसी में नहीं आएगा तो मेरे को बोल लीजिएगा, सर बोल रहे थे क्वेश्चन नहीं आया इसमें राइट एग्जाम में. जो मेरा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, विल बी द लूजर्स. जो क्लास अटेंड कर रहा है, थॉरली आई विल रिवाइज ऑल द कांसेप्ट्स जो कि एग्जाम में आता है. इसमें क्वेश्चन दे रहा है, एक नंबर x है, स्टूडेंट ने x को 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था. उसको क्या करना चाहिए था ना, डिवाइड करना चाहिए था. x डिवाइड बाय 3/5 करना चाहिए था. डिवाइड बाय 3/5 जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5/3 वही है राइट. तो एरर ये होना था, ये हो गया. एरर क्या होगा ना, 5/3x माइनस 3/5 ऑफ x डिवाइड बाय 5/3x इंटू 100. तो कितना झमेला है x का. तो ये मैं x को एक नंबर ले लिया 15, डिवाइड करना चाहिए था, मतलब 3/5 डिवाइड बाय 3/5 मतलब इंटू 5/3 इज इक्वल टू 25. ये दिस इज द करेक्ट आंसर. ना करके वो मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 9 हो गया. एरर कितना हुआ ना, 16. परसेंटेज एरर 16 बाय ओरिजिनल नंबर इंटू 100. हो गया सर. Is it understood, guys? Please respond yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Enjoy the class. Did you enjoy Yes, the class? Yes, sir. Yes, sir. कैसा लगा आपका क्लास में? Feedback. Thank you very much. All the best. Sir, 15